Once, Professor Robert Solow, Nobel Prize winner, Nobel laureate in economics in 1987, was asked by someone who was having knowledge of economics to produce the any concept or to tell the name of one concept in economics that is neither trivial nor immediate transparent. Means it is not very easy or not very difficult, or you can say it is not a very simple or not very difficult type of things. Professor Solow said the law of comparative advantage. There are two terms, comparative advantage as well as absolute advantage. When you say something, you do something for any act, either it is having comparative advantage or absolute advantage. If we see the definition of absolute advantage means you are having some resources, and in that amount of resources, if a person is producing more goods or services, then the person is having absolute advantage. But comparative advantage means it can happen कि for same person is having adaptability or efficiency in two things. For example, a doctor can be a good gardener also. Okay, so there are two person A and person B. Person A is a doctor as well as gardener. Okay, person B is simply a gardener. Okay, it may be that the doctor is having absolute advantage in gardening as well as in profession of doctor. But if person A is having efficiency both in medical profession and gardening, then it comes the role of comparative advantage. For example, if a doctor do the work of a doctor, means profession of medical sciences, he can earn or generate revenue of worth 5,000 per day. But the same person, if he is doing the work of gardening, then it is 1,000. So there is comparative advantage in doing the medical profession. See, this topic is not immediately asked in general competitive examination. Those who are studying economics, it is useful, but it was asked by one of my students. So I thought it's better I should discuss. This topic is close to my heart. I love this topic very much. So I thought I should discuss that. Here comes the term opportunity cost. What is opportunity cost? For studying comparative advantage, you have to know about opportunity cost. Opportunity cost is missing the second best alternative. See, if any person is doing something, आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी नजर में वो लगता है कि हमारा ये बेस्ट एक्टिविटी है, बेस्ट एक्ट है. अब बेस्ट यदि आप कर रहे हो तो आप कोई सेकेंड अल्टरनेटिव तो मिस कर रहे हो. तो जो सेकेंड अल्टरनेटिव आप मिस करते हो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है. तो कंपैरेटिव एडवांटेज का ये मतलब होता है कि कोई भी चीज आप कुछ कर रहे हो, कोई भी एक्ट कर रहे हो, तो उसमें ये देखना होता है कि हमारा जो हम टू वर्क कर रहे हैं उसमें हमारा एडवांटेज अधिक किसमें है. फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो, जो भी मान के चलो कि कैंडिडेट्स हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो एक ही एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं या एक से दो एग्जाम और वो सिमिलर, सपोज यूपीएससी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो दो का करेंगे, एक सीएससी और दूसरा असिस्टेंट कमांडेंट मान के चलो. अब द पर्सन इज डिवोटिंग 10 hours. ओके, अब सेम पर्सन या दूसरा पर्सन मान के चलो, या सेम पर्सन सोचो, तो यदि ये कोई एग्जाम्स में 10 hours डिवोट कर रहे हैं, 10 hours ही डिवोट कर रहे हैं, लेकिन 4 डिफरेंट एग्जाम्स में, तो देखो इनका एब्सोल्यूट जो कॉस्ट है वो दोनों में 10 hours एब्सोल्यूट में यदि देखा जाए, इनका जो इन्वेस्टमेंट क्या है 10 hours. अब लेकिन मान के चलो ये यदि कंपैरेटिव एडवांटेज में क्या होगा कि आप दो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएससी और एसी, और यहाँ 4 एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो. यहाँ आप क्या है,
ऑन एन एवरेज प्लस आप ऑल 4 एग्जाम्स में परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन सिलेक्शन जो है किसी में नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ सेम 10 आवर्स डिवोट करके आप 2 एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो और दोनों में क्वालिफाई हो जा रहे हो, तो क्या है यहाँ कंपेरेटिव आपका एडवांटेज है। एब्सोल्यूट टर्म्स में यदि देखा जाए तो वो 2 पर्सन का आप कैलकुलेट करोगे कि सेम रिसोर्सेस लगाया, एक का सिलेक्शन हो गया, एक का नहीं हुआ। लेकिन यहाँ एक सेम पर्सन यदि है कि वो आप उतना ही टाइम डिवोट कर रहा, लेकिन यदि इस काम को ये कर रहा तो उसकी इफिशियंसी ये ज्यादा होती है। ये टर्म एक तरह से ये इस सेंस में पूछा गया था कि कोई भी एक टाइम में हम डिफरेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे लिए क्या एडवांटेज होता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको कंपैरेटिव एडवांटेज वर्सेस एब्सोल्यूट एडवांटेज को ये बता दूं। कोई भी एब्सोल्यूट एडवांटेज का जो डेफिनेशन फॉर एग्जांपल होता है, if someone can produce more with a given amount of resources or produce the same amount of something with fewer resources। इधर देखो रिसोर्सेस सेम है, रिसोर्स सेम, प्रोडक्शन मोर, ओके, मोर प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन सेम है लेकिन रिसोर्सेस लेस है, दोनों टर्म में आप कह सकते हो तो पर्सन के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। लेकिन एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है वो एवरी प्लेसेस पे वर्क नहीं करता है, आपका कंपेरेटिव एडवांटेज वर्क करता है। और कंपेरेटिव एडवांटेज के लिए आपको जानना होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी चीज के करने का क्या है। जैसे एग्जांपल मैंने डॉक्टर का और गार्डनिंग का दिया, सेम आप अपने लाइफ में किसी भी क्षेत्र में ले सकते हो। तो ये एक स्मॉल सा जस्ट इंट्रोडक्शन था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।